Okay, so today we start Amazon S3, which is the object storage provided by Amazon. इसको मैं अगर full screen mode में कर लूँ, that would be better. ओके सो Amazon S3 जो है ये मैनेज्ड क्लाउड स्टोरेज है विच मींस दैट मैनेज्ड क्लाउड स्टोरेज से मुराद ये होती है कि यू डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू नीड टू हैव अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा वो आपने यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट लाइक ईबीएस में हमने जो देखा था हमने वी हैड टू चूज बिटवीन एसएसडी एंड एचडीडी और एसएसडी आईओप्स की वाली कौन सी है प्रोविजन आईओप्स है जनरल पर्पस है एचडीडी है तो वो कौन सी है थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड है या दूसरी वाली है so there were many different types that we had to select from the infrastructure perspective so EBS की एग्जांपल अगर हम लें तो EBS is infrastructure as a service मॉडल IES मॉडल है जिसमें हम स्टोरेज मेंशन करते हैं और बाय करते हैं but then we have to do lots of things on the storage फिर उसको हमने खुद उस स्टोरेज को बाय कर लिया उसके बाद उसको हमने फॉर्मेट भी करना है उसको माउंट भी करना है और फिर उसके बाद वी विल बी एबल टू use that storage to store data or something. But in managed cloud storage, we have this S3 object storage model where we do not need to worry about the underlying infrastructure. So आपने सिर्फ bucket create करनी है, which is like kind of a folder in other words, but it is called bucket. So आप bucket create करते हैं और उस bucket में you can put objects, as many objects as you want. तो आप जितनी जितनी टाइप डिफरेंट टाइप और डिफरेंट साइज की ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं and what is an object? Object is any file, like it could be an image, it could be a text file, it could be a snapshot. EBS की snapshot भी हो सकती है. ये कोई AMI image भी हो सकता है. ये कोई वीडियो भी हो सकती है. So all those things are single files और इसको हम object कहेंगे इसमें. अमेजोन जो हमें इसकी लिमिट्स हैं बेसिकली क्लाउड स्टोरेज यूजुअली कॉल्ड अनलिमिटेड स्टोरेज बट ऑफ कोर्स नथिंग इज अनलिमिटेड कोई लिमिट तो जरूर होती है बट एक वैसे किसी एंटरप्राइज के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए जितनी स्टोरेज कैपेसिटी उसको चाहिए इट इज इवेंचुअली अनलिमिटेड सो वी कैन यूज इट for as many type and size of objects as we want. इसमें जो सिंगल ऑब्जेक्ट की जो लिमिट है वो 5 टेराबाइट की फाइल है विच मीन्स दैट if you are creating a snapshot of your EBS or if you are creating a virtual machine image AMI image बना रहे हैं जिसके अंदर EBS भी है और आपकी पूरी स्टेट है और सारे सॉफ्टवेयर हैं सारा डेटा मौजूद है तो वो जो आपकी स्नैपशॉट बनेगी या AMI image बनेगा that cannot be more than 5 terabytes. So this is the maximum size that you can have. But yeah, this is a good number of good amount of storage that you have for a single object. इससे ज़्यादा बड़ी आपको जरूरत नहीं होगी. And this also means that you can also take snapshots of databases, right? Right? तो databases हमारे काफी बड़े साइज के होती हैं. तो अगर databases आप यूज कर रहे हैं तो उनकी भी snapshot अगर आप लेना चाह रहे हैं तो सिंगल ऑब्जेक्ट की लिमिट को अपने जहन में रखना होगा. Then the next feature that it has is that it is designed for 11 nines of durability, which means that 11 nines of durability means कि जिस हम कहते हैं ना 99.9. So this is 1 9 of durability. If I say 99 point and then 11 nines of durability, which means that it has a very less probability of getting broken down. तो ये आपकी आपकी सर्विस जो है वो डाउन नहीं होगी ड्यूरेबल होगी so 11 nines of durability देरी होती है and then S3 also gives you granular access to the bucket and also to the objects so what does that mean access हमने देखा है identity and access management में we have talked about access control where we could create different access policies और उन policies को use करते हुए we can assign access to a single person किसी role को access दे दें किसी individual को access दे दें IAM user को access दे दें तो वो bucket level पे भी हम access कर सकते हैं
और ऑब्जेक्ट लेवल पे भी एक्सेस कर सकती हैं। जस्ट अ मिनट, सी इफ आई कैन। Okay, so yeah, so it has granular access to bucket and object. So object level पे भी हम policies attach कर सकते हैं और bucket level पे भी policies attach कर सकते हैं. Then another property of S3 is that you can enable encryption at rest and in transit. So जब which means that अगर एक bucket से data transfer हो रहा है दूसरी bucket में या आपके EC2 instance से आपका data transfer हो रहा है किसी S3 bucket में तो वो जो ट्रांजिट के दौरान डेटा ट्रांसफर होगा वी कैन एनेबल एन्क्रिप्शन व्हिच मींस एचटीटीपीएस जो सिक्योर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसको यूज करते हुए डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा और इसी तरह अगर हम ये चाहें कि if I have a file or snapshot of my EBS volume, I would like it to be protected because it has everything. So I would like to be I would like this to be encrypted. So encryption enable करके आप उसको at rest भी encrypt कर सकते हैं. So which means that मैं EBS volume की जो मेरी snapshot बनी वो S3 storage के ऊपर store होगी, but then I can also make it encrypted. वो अगर मैं encryption enable कर दूंगा तो वो snapshot encrypted form में ही होगी वहां पे. Then the next property is ubiquitous access, which means that it can be accessed from anywhere. और anywhere से मुराद क्या है कि we can access it using mobile, we can access it from web interfaces, we can access it from any device or protocol. So that eventually means that it provides us access through the management console. हमें पता है ना तीन तरह की हमने एक्सेस दो बेसिकली एक्सेस लेवल्स देखे थे. एक प्रोग्रामेटिक एक्सेस थी और एक नॉन प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू थी. सो बेसिकली यहाँ पे इससे यही मुराद है कि वी कैन एक्सेस S3 बकेट्स यूजिंग मैनेजमेंट कंसोल, वो भी हम कर सकते हैं. बट ऑल्सो वी कैन यूज एस डी के एपीआईज. हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं एपीआईज को कॉल करके को यूज करके बकेट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, and also using command line interface CLI. So three levels of access which they are provided for S3 buckets as S3 storage. Then it has possibility, it allows us to enable notifications, which means that जो events हो रहे होंगे S3 storage के ऊपर हम उनको अगर enable कर देंगे so we can catch those events. For example, a new file is added, so ये एक event create हुआ, या हम इस तरह का event कहते हैं कि 90% storage is filled. So नहीं sorry, that's wrong, I should not say that because S3 के बारे में एक चीज ये है कि S3 स्टोरेज में हम स्पेसिफाई साइज नहीं करते कोई भी. सो वी डोंट से एनीथिंग कि मुझे 100 GB की स्टोरेज चाहिए. वी डोंट नीड दैट बेसिकली. सो हम S3 में वी जस्ट पुट और फाइल्स इन S3 एंड देन इट डिपेंड्स. Amazon आपको चार्ज इस बेसिस पे करेगा कि आपने कितनी फाइल्स रखी, नंबर ऑफ फाइल्स और उसका साइज ऑफ फाइल्स. तो अगर आप 1 GB की फाइल रखी है तो 1 GB के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा, और अगर आपने 1 TB की फाइल्स रखी हैं तो 1 TB का चार्ज होगा. तो यहाँ पे ये वाली बात तो मैं नहीं कह सकता कि 90% स्टोरेज इज फिल बिकॉज हमने वी हैव सीन देयर दैट इट प्रोवाइड्स अस virtually unlimited storage, so it doesn't have any size. So ये scale up और scale down accordingly होता है जैसे आप इसको यूज कर रहे होते हैं. बट ऑफ कोर्स इसके एक साइड नोट के तौर पे आपको बताता चलूं कि amazon S3 स्टोरेज आपको अगर आपको एज एन सॉफ्टवेयर एज सर्विस की फॉर्म में देता है ना, तो लाइक यहाँ पे तो हम बात सॉफ्टवेयर के लेवल पे बात नहीं कर रहे ना. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपको मैनेज्ड क्लाउड स्टोरेज मिल रही है. लेकिन जिस तरह से आपके पास ड्रॉप बॉक्स है तो आपको बताया जाता है कि ओके यू हैव 5 GB और फ्री स्टोरेज और 1 TB का आप प्लान ले लेते हैं. तो इस तरह भी Amazon का एक बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट करता है जिसमें आपको लिमिटेड एक्सेस स्टोरेज देता है. वो लाइक आई थिंक दैट्स कॉल्ड, मुझे नाम उसका भूल रहा है, Amazon अभी वो खत्म कर रहे हैं लेकिन इस तरह का था. बट इवेंचुअली वैसे अगर आप एक एज अ क्लाउड यूजर की बात करेंगे तो
इसमें स्टोरेज की लिमिट नहीं है, यू कैन जस्ट पुट योर फाइल्स एंड यू डोंट बाय अप फ्रंट, आप नहीं बताते कि साइज कितना होगा। तो सो इवेंट नोटिफिकेशंस की मैं एग्जांपल्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो स्टोरेज की 90%, मैंने जिस तरह कहा कि नोटिफिकेशन 90% पे आ जाए, तो नो, इट विल नॉट हैपन। हम यही कह सकते हैं कि कोई नई फाइल ऐड हो गई, कोई फाइल डिलीट कर दी, या आप कह सकते हैं कि स्टोरेज जो है वो बैंडविड्थ इतनी ज्यादा यूज हो रही है। तो इस तरह की जो चीजें हैं कि या कब फाइल यूज हुई, सो इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो S3 हमें इनके नोटिफिकेशंस जनरेट करके दे सकते हैं। एंड दैट वुड मीन कि अगर आप इन नोटिफिकेशंस को कैच करके यू वांट देम टू डू सम सर्टेन एक्शंस लाइक वी डिस्कस्ड वंस इन द क्लास, कि हो सकता है आप ये कहें कि यार अगर एक नई फाइल आ जाती है तो उस फाइल को का थंबनेल लेके यू पुट दैट थंबनेल इन इन सम प्लेस। ये इस तरह की एग्जांपल हमने क्लास में डिस्कस की थी। सो सो हम लैम्डा फंक्शन इस तरह का लिख लेते हैं कि ये इवेंट हुआ तो ये काम करना है। और वी कैन ऑल्सो से कि अगर कोई कोई फाइल आप रीड कर रहे हैं और वो आपकी डेली रीड हो रही है इस बकेट में, तो दैट मीन यू कीप दैट फाइल हियर। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो एक फाइल जो है 30 डेज आपसे एक्सेस नहीं हुई, तो आप उसको एक और टाइप की स्टोरेज में डाल लें, जो कि अभी हम क्लास ऑफ स्टोरेज, S3 स्टोरेज क्लासेस की बात नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, वहां पे मैं बताऊंगा। तो इस तरह के इवेंट्स वी कैन कैच देम एंड वी कैन राइट लैम्डा फंक्शंस फॉर दोज इवेंट्स, ये हम कर सकते हैं। Then we can enable storage class analysis policy. So storage class क्या होती है वो next slide में आने लगे। और ये analysis policy it will tell us कि हमारी जो storage है, हमारी जो files हैं, जो objects हैं, ये इन इनकी access का level क्या था? Were we accessing this file very frequently or very infrequently? तो इस बेसिस पे वी कैन डिफाइन लाइफ साइकिल पॉलिसीज फॉर द डेटा। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो हम बता सकते हैं कि हमने उसको किस टाइप की स्टोरेज में स्टोर करना है। सो ये जो पॉइंट है, इसको इसकी मजीद डिटेल जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में आने लगी है। सो द फर्स्ट थिंग, जैसे अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, तो एक है Amazon S3 स्टोरेज क्लासेस। सो हमारे पास S3 की स्टोरेज क्लासेस क्या हैं? जैसे हमने EC2 इंस्टेंसेस में उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास मेमोरी ऑप्टिमाइज था, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज था, टाइनी था, लार्ज था, डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंस्टेंसेस थे ना। उसी तरह स्टोरेज की भी यहाँ पे वी हैव, इफ यू लुक एट दीज 1 2 3 4 5 6 क्लासेस ऑफ स्टोरेज। तो आप इनमें से कौन सी S3 की स्टोरेज बाय कर रहे हैं, that is something that you can specify when creating a bucket. अब इनमें फर्क क्या है? what are these different storage classes? है सारी S3 हैं, object storage हैं। So we start with the Amazon S3 standard, which is the standard storage class, which means कि आप it is optimized, it is scalable, it is very much available, ड्यूरेबिलिटी इसकी ज्यादा है, रिडंडेंसी इसकी ज्यादा है। सो देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी पैरामीटर्स जिनके ऊपर ये फुलफिल करती है। द ओनली थिंग दैट इट हैज, द ओनली प्रॉब्लम दैट वी कैन थिंक ऑफ इज दैट इट्स प्राइसिंग। सो Amazon S3 स्टैंडर्ड में जो प्राइसिंग है, कॉस्ट होगी, वो दैट वुड बी लिटिल मोर एक्सपेंसिव देन दी अदर स्टोरेज क्लासेस। अब हम देखते हैं कि वो क्या, why this is different. So S3 इंटेलिजेंट टियरिंग जो है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। Let me first discuss about Amazon S3 standard. It's like standard, yes, okay, but it is infrequent access। और फिर एक Amazon S3 one zone infrequent access, एक ये क्लास है। एंड देन S3 ग्लेशियर और ग्लेशियर डीप आर्काइव, ये दो ग्लेशियर टाइप की S3 स्टोरेज हैं। एंड these one two and these three are the standard S3 services। सो आपने ध्यान में ये रखना है कि आपके पास दो दो सब क्लासेस आ गई S3 की, एक स्टैंडर्ड और एक ग्लेशियर। और फिर ग्लेशियर के अंदर एक ग्लेशियर स्टैंडर्ड है और ग्लेशियर का डीप आर्काइव है। और स्टैंडर्ड के अंदर वी हैव टू टाइप्स, जिसमें एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है एंड देन वी हैव इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वाला और वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस।
सो ये डिफरेंट क्लासेस बनाने का मकसद ये है कि इफ योर रिक्वायरमेंट इज नॉट, आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि S3 स्टैंडर्ड आप यूज करें जिसके लिए ज्यादा कॉस्ट पे करें, तो यू कैन गो फॉर infrequent access as well. So what is this Amazon S3 standard infrequent access? इसमें अगर फॉर एग्जांपल हमारी कोई ऐसी फाइल्स और ऑब्जेक्ट्स हैं जो जो आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करना चाहते, इट्स लाइक नहीं करना चाहते या नहीं यूज हो रही, फॉर एग्जांपल आई कुड से कि मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस की वीडियोस हैं, आज से 1 साल पहले जब कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, वो वीडियोस जो थी, वो वीडियोस मैंने पिछले 1 साल में नहीं देखी. So that means it is something which is very infrequent. So I am not accessing them frequently. But इस सेमेस्टर की जो अगर ऑनलाइन क्लास है तो दैट वुड बी एक्सेस्ड फ्रीक्वेंटली. तो ये मैं अगर वीडियो बना के शेयर करूंगा तो यू विल एक्सेस दैट ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर. जब सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तो इसकी एक्सेस फिर फ्रीक्वेंट नहीं रहेगी. तो दैट मीन्स कि मुझे कुछ मुझे ऐसा कुछ सोचना चाहिए, इसको कहते हैं डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट. तो डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या है कि हाउ यू पुट योर डेटा या ऑब्जेक्ट्स या डेटा आप कह ली, किस तरह से आप उसको स्टोरेज में स्टोर करते हैं. तो अगर आपका वो डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है तो दैट शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम, आपके आपके पास होना चाहिए, विच मीन्स इट शुड बी इन द Amazon S3 स्टैंडर्ड. तो दिस वुड कॉस्ट यू मोर, बट आप S3 स्टैंडर्ड की जो स्टोरेज अमाउंट होगी वो आप कम से कम इस्तेमाल कर रहे होंगे, सिर्फ वो डेटा यूज हो रहा हो, वो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट उसकी पे कर रहे होंगे, या एक्सपेंसिव कॉस्ट उसकी पे कर रहे होंगे जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं. बट देन ऑल द वीडियोज विच वर फ्रॉम द प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर, दे शुड गो टू इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, सो दैट ओके नोबडी इज यूजिंग इट बट स्टिल इट इज अ गुड रिसोर्स. तो वीडियो पड़ी रहे उधर, तो मे बी आप कल को कहें कि सर आप फॉर एग्जांपल ईबीएस का लेक्चर तो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करें कि वीपीसी का कोई लेक्चर जो है वो वो उसकी वीडियो शेयर कर दें. तो मेरे पास अभी तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई आई हैव दैट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. अगर आप उसको एक्सेस करेंगे या मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा तो वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस से स्टैंडर्ड एक्सेस इस जगह पे आ जाएगा. एंड दैट वुड मीन कि यहाँ पे जब शेयर था पिछले 1 साल में, जिस स्टोरेज क्लास में वो पड़ी हुई थी फाइल, वो एक वीडियो की वन 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 सपोज 300 MB की फाइल, उसकी कॉस्ट 1 साल मुझे काफी कम पड़ी होगी बिकॉज इट वाज इन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस क्लास. लेकिन जैसे ही वो इधर आएगी तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी. सो इफ समबडी इज यूजिंग इट दैट मीन्स कि उसका कोई यूटिलिटी है और फिर उसकी कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी. बट दिस इज अ गुड गुड सर्विस टू हैव जो आपकी इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है. एंड ऑफ कोर्स आई डू नॉट वांट इट टू बी डिलीटेड. And then there is another similar kind of class where we have one zone infrequent access. So it is even cheaper than this one, second one. So ये उससे भी सस्ती है because ये single zone में होगी. So S3 की objects जब standard में होती हैं तो उनकी automatically they are replicated in different availability zones. So just to make sure that your data is available all the time, और डिजास्टर रिकवरी और हर तरह के resilience के लिए it is a very good solution. But here we are saying that we do not want this file or object or data to be available in multiple availability zones. So it would be cheaper. But the flip side would be कि अगर एक availability zone ज़ाया हो जाती है या उधर कोई डिजास्टर होता है और वो क्रैश कर जाती है, तो then the data in this form would be lost. ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज होगा. सो व्हाई वी नीड देम, ये हमें क्यों चाहिए, ऑल्दो सस्ता है लेकिन क्या हमें इसको यूज करना चाहिए, एंड व्हाट आर द यूज केसेस. सो आई कैन जस्ट शेयर वन यूज केस कि मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट्स की जो मार्क्स हैं, हमारा फ्लेक्स का एक सिस्टम है, ठीक है, जो वेयर वी आर एडिंग ऑल द अटेंडेंसेस और आपके मार्क्स हैं और एवरीथिंग. तो स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं और वो जो डेटा है, दैट डेटा शुड नॉट बी लॉस्ट. सो उसको आपने हमेशा मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स वाली ऑप्शन में ही स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल दिस वन और दिस वन, ठीक है, जो भी यूज कर रहे हैं आप. बट अगर हाँ, मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट्स की ट्रांसक्रिप्ट जो जनरेट हुई हैं वो तो एक इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है, इट्स इट्स अ स्मॉल थिंग.
बट फॉर एग्जांपल वन कैन से कि अच्छा um, um, एक एक जो बैच है पूरा एक साल का स्टूडेंट्स का डेटा, उसके बाद जब जब ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है या कॉन्वोकेशन होती है, डिग्रीज मिलती हैं, तो उस स्टेज पे जो सारा डेटा कंपाइल होता है, किससे कंपाइल होता है? आपके ओरिजिनल डेटा से कि मार्क्स पहले सेमेस्टर में कितने आए, दूसरे में कितने आए, तीसरे में। उसके बाद उस सारे डेटा को कंपाइल करके एक रिपोर्ट बनी एंड दैट इज योर फाइनल ट्रांसक्रिप्ट. So that final transcript is something which we have created using some data here. सो ये एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ. बेटर एग्जांपल वुड बी कि डेटा साइंस वाले जिससे स्टूडेंट्स हैं, या बिजनेस एनालिटिक्स की हम बात करें कि आपने 1 टेराबाइट ऑफ डेटा है, जिसके ऊपर आपने ऑपरेशंस किए एंड दोज ऑपरेशंस टुक फॉर एग्जांपल लाइक 1 डे टू परफॉर्म. कोई भी ऑपरेशंस किए आपने एंड देन यू क्रिएटेड समथिंग, कोई आपने रिपोर्ट जनरेट की या कोई ग्राफ्स जनरेट किए. तो वो ग्राफ्स जो जनरेट हुए दे हैव बीन जनरेटेड आफ्टर 1 day of activity, but still like those could be regenerated. So आप वो जो ग्राफ जनरेट हुए जो कि 500 MB के है, उसको आप इस जगह पे रख सकते हैं जो वन जोन infrequent access में, because you do not need those graphs all the time. So it is a good case for infrequent access. And also in the worst case क्या होगा कि आपकी ये वाली अवेलेबिलिटी जोन अगर क्रैश कर जाती है तो आपका ग्राफ जाया हो जाएगा. So that is fine because you still have the data which was either here or here. So आप उस डेटा से दोबारा वो, ऑफ कोर्स आपको प्रोसेसिंग कॉस्ट तो पड़ेगी, बट देन आपने यहाँ पे कॉस्ट जो स्टोरेज की कॉस्ट पे चाहिए वो आपको फायदा हो जाएगा. So you will have to process it again and generate those things again. So if that kind of data exists जिसको आप रीजनरेट कर सकें, तो आप उसको infrequent access one zone infrequent access में स्टोर कर सकते हैं. So that would cater for the crashes as well, अगर वो availability zone crash कर जाए. सो हमारे पास ये अभी तक हमने स्टैंडर्ड ये नहीं डिस्कस की अभी. एंड these two models S3 standard के हमने डिस्कस किए हैं. And then we have another type which is S3 Glacier. S3 Glacier और S3 Glacier Deep Archive. ये जो दोनों types हैं, these are basically not for accessing the data. ये backups के लिए आप इसको use कर सकते हैं. So especially like you can say कि अगर मैं मेरे पास जितना भी डेटा है, मेरी वीडियोस हैं फॉर एग्जांपल, कोई पिक्चर्स हैं मेरे पास, दे आर लॉट्स ऑफ डेटा. 1 टेराबाइट का मेरा अपना पर्सनल डेटा है पिछले 4 सालों का, 5 सालों का. सो व्हाट आई उस डेटा को मैं क्या कैसे स्टोर करूं? सो इफ आई डू नॉट वांट टू कीप दैट डेटा ऑन माय कंप्यूटर ऑल द टाइम, ऑफ कोर्स आई वांट टू पुट दैट इन द क्लाउड स्टोरेज. अच्छा, क्लाउड स्टोरेज में अगर इस स्टोरेज में डालता हूं तो एंड आई डू नॉट एक्सेस दैट डेटा, मेरे फॉर एग्जांपल 10 साल पुरानी कोई वीडियो है, तो उसको मैं डेली नहीं देख रहा, बट समटाइम्स आफ्टर 4-5 मंथ्स मेरा दिल चाहता है यार, ओके, आई वांट टू सी दैट, वॉच दैट. So of course that data should not be in this, not shouldn't be in this, shouldn't be in this, because ये expensive हैं सारी storages. I will prefer to put that data in S3 Glacier. जिसको मैंने 5 माह, 6 माह, साल, 1 साल एक्सेस नहीं करना, तो उसको S3 Glacier में प्लेस करूंगा. सो S3 Glacier क्लास जो है, इसमें स्टोरेज कॉस्ट बहुत कम है. इट इज लीस्ट, इट्स वेरी चीप, बट द डाउन साइड इज कि अगर आपने इस डेटा को एक्सेस करना है कभी ना कभी, ये बैकअप्स भी हो सकते हैं आपके, अगर आपने इसको एक्सेस करना है, तो वो जो रीड करने की जो कॉस्ट होगी, जो डेटा को रिट्रीव करने की कॉस्ट और टाइम होगा, दैट वुड बी मोर. सो फॉर एग्जांपल इट कुड हैव से कि आप कहते हैं जो ओके मुझे वीडियो देखनी है, तो आप ये रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, आपको 5-6-10 घंटे बाद वो वीडियो मिलेगी. सो इट वुड नॉट बी लाइक कि आपने उसको बस डाउनलोड किया और देखना शुरू कर दिया. सो ग्लेशियर के लिए आप रिक्वेस्ट पुट करेंगे एंड दैट रिक्वेस्ट वुड गो टू Amazon एंड देन दे विल प्रोसेस इट, और फिर डीप आर्काइव से वो कहीं से वापस आ रही होगी एंड ग्लेशियर से वापस आएगी, लोड होगी एंड देन यू कैन यूज दैट. सो इसकी जो वो कॉस्ट है, दैट वुड बी मोर. और इससे भी चीपर जो फॉर्म है वो Amazon S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव है, जिसमें आप ऐसा डेटा बैकअप्स ले रहे होते हैं. और इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पे डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज रिक्वायर करती हैं कि आपने कोई डेटा स्टोर रखने फॉर 10 years. फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस में आप चले जाएं, तो somebody कैन एंड यू आर वर्किंग इन अ फाइनेंस इंडस्ट्री,
सो आपको ये कहा जा सकता है, वो रेगुलेशन ये डिमांड करेगा कि आपने 10 साल के लिए डेटा को स्टोर करना है, सो इट इज अ लीगल डिमांड रिक्वायरमेंट। तो आप उस 10 10 ईयर्स के लिए आपको स्टोरेज चाहिए। तो आप यू आर नॉट यूजिंग दैट डेटा, लेकिन कस्टमर की ट्रांजेक्शन्स का डेटा आपने रखना है 10 ईयर्स के लिए। तो आप वो सारा डेटा किधर स्टोर करेंगे? ऑफ कोर्स दीज आर एक्सपेंसिव चॉइसेस। तो आप ग्लेशियर डीप आर्काइव में उसको स्टोर कर देंगे। सो 10 ईयर्स के लिए पड़ा रहे, एंड यू विल नॉट नीड दैट। बेसिकली 10 ईयर्स बाद वो खुद ही डिलीट हो जाएगा, बट इट वुड बी देयर। तो अगर फॉर एग्जांपल 8 ईयर्स बाद कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट आती है, कोई कोर्ट केस होता है वेयर गवर्नमेंट वांट्स योर कंपनी टू प्रोवाइड दैट डेटा, तो आप सिंपली डीप आर्काइव से उसको एक्सेस कर लेंगे। so that would be once in a year or once in a 2 years। तो उस केस के लिए ग्लेशियर डीप आर्काइव को आप यूज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर बैकअप्स। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई डेटा है, तो उसको मैं बैकअप्स के लिए भी यूज कर सकता हूँ। तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस हैं। इन सब क्लासेस में एक जो हमने मिस की, इट इज Amazon S3 इंटेलिजेंट टियरिंग। सो अगर आप इसको चूज करते हैं, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट, इट वुड नॉट बी वेरी चीप। लेकिन इसमें और क्या इसमें एक्सपेंस क्या आएगा? इट विल दे विल चार्ज यू अ स्मॉल मंथली मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेशन फी पर ऑब्जेक्ट। सो विच मीन्स दैट अगर आपने 1000 ऑब्जेक्ट्स आपकी स्टोरेज के अंदर पड़ी हुई हैं, यानी कि 1000 फाइल्स हैं, तो 1000 फाइल्स के लिए वो जो मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेशन फी है, वो चार्ज की जाएगी आपको। एंड वो किस चीज को मॉनिटर कर रहे होंगे और क्या प्रोसेस ऑटोमेट कर रहे होंगे? बेसिकली दे वुड बी मॉनिटरिंग दैट ओके दिस ऑब्जेक्ट विच इज लाइक अंडर मॉनिटरिंग, वो ऑब्जेक्ट अगर 1 महीना एक्सेस नहीं हुई, तो दे विल जस्ट पुट दैट ऑब्जेक्ट इन द इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इधर मूव कर देंगे। विच वुड मीन कि आपको ये वरी करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू एनालाइज दिस कि which object should be in the standard infrequent access, which should be in the glacier, and which should be in the glacier deep archive। So अगर कोई एक्सेस नहीं हो रही कोई फाइल, तो दैट मीन्स दैट शुड गो टू द इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, और ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा होगा अगर आपने ये वाली क्लास चूज की होगी। सो इट्स अ गुड ऑप्शन। स्मॉल मंथली फी जरूर है, बट देन इट वुड that would be covered if you are using this, because आपका यहाँ पे जो स्टोरेज कॉस्ट आ रही थी, वो अब कम हो रही है, बिकॉज आपकी वो फाइल इस जगह पे मूव करके ले गया था ऑटोमेटिकली। लेकिन इसमें जो जो फ्री फीचर्स हैं वो ये हैं कि नो कॉस्ट फॉर क्लास चेंजिंग। सो इट अदरवाइज दैट इट अगर आप एक क्लास को चेंज करती हैं, तो उस क्लास चेंज की भी कॉस्ट आपको जो पड़ रही होगी, वो आपको नहीं पड़ेगी। एंड वो कॉस्ट क्या हो सकती है कि आप रिट्रीव कर रहे हैं इनफ्रीक्वेंट टीयर से। फॉर एग्जांपल, अगर आप इधर से इधर इनफ्रीक्वेंट टीयर एक्सेस से आप S3 स्टैंडर्ड के अंदर कोई कोई फाइल को लेके आ रहे हैं, इसको इसका चार्ज किया जाएगा। इट विल हैव सम कॉस्ट, अगर आप मैनुअली खुद कर रहे हैं या आपने अपना लैम्डा फंक्शन लिखा हुआ है। बट अगर आपने इंटेलिजेंट टीयरिंग किया हुआ है सिलेक्ट, तो इसमें आपको ये चार्ज नहीं पड़ेगा। इट वुड बी ऑटोमेटिकली मैनेज्ड, एंड यू विल ऑल्सो ओनली पे फॉर दिस थिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेशन, वो जो भी कॉस्ट है। So that after this, we can go back to this previous slide where it says event notifications। So for example, here we can now figure out कि अच्छा कोई इवेंट्स क्या हो सकती हैं कि एक फाइल है, उसको आप मॉनिटर करें कि वो कब कब एक्सेस हुई है, और अगर एक्सेस हुई है तो दैट शुड बी इन द S3 स्टैंडर्ड, और एक्सेस नहीं हुई, अगर 30 डेज से ज्यादा गुजर गए हैं, तो आपका लैम्डा फंक्शन क्या करेगा? इट विल मूव इट टू द इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। सो आप खुद ये काम कर रहे हैं। यू आर नॉट आस्किंग, यू आर नॉट यूजिंग दिस इंटेलिजेंट टियरिंग, बट यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट योरसेल्फ। सो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यू कैन लुक एट दिस स्टोरेज क्लास एनालिसिस पॉलिसी। ये अगर आपने एनेबल किया हुआ है, तो इट विल टेल यू, यू कैन सी ग्राफ्स एंड यू कैन सी द एक्सेस के रिसेंटली कौन सी फाइल्स, कौन सी ऑब्जेक्ट्स रिसेंटली एक्सेस नहीं हो रही, 1 महीने से ज्यादा हो गई हैं। यू कैन लुक एट दैट एंड यू कैन figure out कि okay, these files should have been in the in the other classes, one of those classes। so आप ये चीजें कर सकते हैं इसके साथ। ओके, सो ये जो हम बकेट की बात कर रहे हैं, S3 bucket that Amazon provides us, um, how this is
accessed, इसका इसका URL create होता है, and there are two ways, two path, two styles to have that access to that bucket. तो जब भी आप bucket को किसी एक region में create करते हैं, तो आप उसको access करने के दो paths आपकी होती हैं, stand जो आप, this is just for your knowledge, right? So the first thing is HTTPS, which tells us that it is a secure protocol. Then S3 is like fixed always. So you will say S3 dot and then the region name. जो भी आपकी region है वो पता लग जाएगा इधर से इस URL से. And this is fixed Amazon AWS.com slash and then the bucket name. And this bucket name should be universally unique. So अगर मैं अपनी bucket बनाता हूँ और मैं नाम रखता हूँ मुदस्सिर, so of course I will not get that because somebody would have chosen that name before. So मुझे कुछ और नाम रखना होगा and that would be universally unique. इसी को एक्सेस करने का जो दूसरा स्टाइल है वो ये है कि यू कैन से HTTPS and start with the bucket name dot s3 dash and then the region name and then Amazon AWS.com slash, of course आगे कोई अगर फाइल है तो उस फाइल का नाम आ जाएगा preview.mp3 mp4. So as I said, these buckets they are replicated uh, in the same region and in the different availability zones. ठीक है, S3 by default ये कर रहा होता है कि इसकी multiple copies, redundant copies रख रहा होता है, so your data is available all the time. So you can see that this is one availability zone, एक data center है, दूसरी availability zone, third availability zone. So यहाँ पे same file automatically welcome.mp4 is being stored in three facilities. So अगर ये crash कर जाती है तो यहाँ से आपको data access मिल जाएगी, ये crash करेगी तो इससे मिल जाएगी. So we have redundancy here. So this bucket is designed for seamless scaling, which scaling क्या होती है that we can increase the size of storage. तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि you don't have to worry about that. You just start writing your objects in the bucket. तो bucket जो है वो automatically वो scale up होती जाएगी. और अगर ऑब्जेक्ट को आप डिलीट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्केल डाउन हो जाएगी. तो इसका साइज जो है वो ऑटोमेटिकली scale up or scale down होगा. You don't have to worry about that. I think there was some other point I'm missing. Let's see. Core point I think high volumes. हाँ, the second point was कि एक तो ये हो गया ना, दूसरा ये इसमें important point है कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी ये फाइल जो है welcome.mp4 इसको इसको 100 यूजर्स एट अ टाइम एक्सेस कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. जो रिक्वेस्ट्स हैं इसकी, जो रिक्वेस्ट आएंगी उनको वो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को भी स्केल अप और स्केल डाउन ऑटोमेटिकली AWS करेगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि यार सिंगल रिसोर्स को मल्टीपल पीपल एक ही वक्त में एक्सेस कर रहे हैं, तो दैट इज डन ऑटोमेटिकली बाय AWS. सो एक तो साइज की हमने बात की सीमलेस स्केलिंग में, और एक उसकी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो आ रही हैं उनको भी सीमलेसली स्केल करेगा. Okay, so before I go further, we can have an attendance. So I have enabled the attendance. You have 1 minute to mark. सर लिंक शेयर कर देंगे दोबारा से. अच्छा जी, मिल गया लिंक. So we talked about this scaling and then access anywhere. Okay, we have ये already मैंने आपको बता दिया है. Let's see. So here we are saying that this can be accessed anywhere. Buckets को आप किसी तरह से भी access कर सकते हैं. So we talked about AWS Management Console. We had that.
So we talked about AWS Management Console, command line interface और SDK APIs को यूज करते हुए भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. So which is a good thing to have. um, इसके कॉमन यूज केसेस क्या हो सकते हैं, थोड़े से तो मैंने डिस्कस किए हैं, एंड यू कैन थिंक मैनी मोर, बट वेरी कॉमन यूज केसेस आर it can be S3 buckets can be used to store application assets. For example, if you are if you have created a web application or mobile application, कोई application है आपकी pictures ले रही है, and then you want to store those pictures, you can just put them in S3 bucket. आपके मोबाइल से SDK को के थ्रू यूज कर एक्सेस करते हुए यू कैन जस्ट रेफर टू दैट बकेट, और वहां पे वो फाइल स्टोर होती जाएंगी. तो आप एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, चाहे मोबाइल की हों या जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हों. Then it can be used for static web hosting. इट्स नॉट डायनामिक वेब होस्टिंग. इसकी एग्जांपल भी हमने क्लास में जरा देखी थी. तो स्टैटिक वेब होस्टिंग में आप कैसे कर सकते हैं, यू कैन जस्ट पुट यू कैन क्रिएट अ बकेट, एंड उस बकेट को आप कह दें कि ये मैं वेब होस्टिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, एंड देन यू जस्ट पुट योर HTML पेजेस एंड CSS स्टाइल शीट एंड HTML पेजेस, जो जितने भी आपका वो स्ट्रक्चर है, तो इट विल बी एक्सेसिबल. तो वो आपकी स्टैटिक वेब होस्टिंग हो जाएगी उसमें. Of course, इसमें डायनामिक कंटेंट नहीं होगा, बिकॉज इट वुड नॉट बी backed by any डेटाबेस सर्वर या कोई ऐसी चीज नहीं होगी. बट यूजुअली जो स्टैटिक वेब होस्टिंग होती है, आप करना चाहें अगर, यू कैन ऑलवेज डू दैट, चूज दैट. देन और इंटरेस्टिंगली आई वुड से कि आप में चंद एक जो इंटरेस्टेड लोग होंगे जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं, तो यू नो वेब होस्टिंग के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं. एक होस्टिंग स्पेस चाहिए होती है, और दूसरा अपना यूआरएल चाहिए होता है. तो यूआरएल तो आपको इन एनी केस बाय करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल जो डीएनएस नेम जो होता है वो आप चाहे amazon क्लाउड 53 यूज करें या किसी और नेम चीप का यूज करें या गोडैडी का यूज करें, जिसका भी यूज करें, तो डोमेन नेम जो भी आपने लेना है वो आप बाय कर लें अपने नाम से. और फिर आपने होस्ट किधर करनी है, देयर आर मल्टीपल वेज. तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं अपने कंप्यूटर पे ही वेबसाइट होस्ट करके उसको डायरेक्ट करवा दूं, जो भी मेरी वेबसाइट को एक्सेस करे, आईपी मैं स्टैटिक आईपी दे दूं. बट ऑफ कोर्स मेरा कंप्यूटर 24 घंटे ऑन नहीं होगा, वो रिजिलियंट नहीं होगा साइबर अटैक से. 10 रिक्वेस्ट आएंगी तो मेरा सर्वर डाउन हो जाएगा मेरे कंप्यूटर पे जो रन हो रहा होगा. देयर वुड बी मेनी प्रॉब्लम्स. तो सेकंड ऑप्शन इज कि मैं होस्टिंग करूं किसी ऐसी जगह पे जो मुझे फ्री की मिल रही हो या बाय कर लूं मैं. तो डायनामिक अगर वेबसाइट है तो फिर मुझे डायनामिक वेब होस्टिंग के लिए तो कॉस्ट पड़ेगी. या फिर ये किया जा सकता है कि मैं EC2 का एक इंस्टेंस बाय करूं और उसके ऊपर डायनामिक वेब होस्टिंग कर लूं. वो भी किया जा सकता है, जो हमने जैसे बीन स्टाक की एप्लीकेशन देखी थी, तो वी कैन यूज बीन स्टाक टू टू होस्ट आवर वेबसाइट. और तीसरी वेब ऑप्शन ये है, जो अगर बिल्कुल आपने अपनी सिर्फ वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट्स बनानी है जिसमें कोई यूजर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, कोई डेटाबेस बैकएंड पे नहीं है, इट्स ओनली अबाउट शोइंग सम कंटेंट ऑन द वेबसाइट, अपनी प्रोफाइल बतानी है, CV देनी है, एक्टिविटीज बतानी है, सो यू कैन क्रिएट वेब होस्टिंग. और वो आप उसकी भी मुख्तलिफ वेज हो सकती हैं. उसमें एक ऑप्शन ये है कि अमेजोन की बकेट आपने बनाई हो, उसके अंदर अपनी फाइलें वेबसाइट की सारी रख लें और रिसोर्सेज सारी उधर रख लें, एंड दोज वुड बी होस्टेड इन द S3 बेसिकली. सो S3 जो, अगर आपको कोई फ्री टीयर में S3 मिल रही है, इतनी इतनी स्टोरेज जो 4-5 GB आपकी वेबसाइट के लिए काफी होती है यूजली, तो दैट वुड होस्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री. या कोई और क्लाउड प्रोवाइडर देख लें, वो भी इस तरह आपको यही ऑप्शंस देते होंगे. ओके. देन वी हैव बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी. इसके लिए भी S3 यूज किया जाएगा. जैसे हमने स्नैपशॉट्स की बात की थी, EBS की स्नैपशॉट लेके वी कैन पुट दैट इन द S3, एंड देन if our computer crashes, then we can just attach that new EBS volume, and that would be created using the snapshot that we have backed up. So बैकअप आप कितने अरसे में कर रहे हैं, कितनी देर बाद कर रहे हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी से कर रहे हैं, वो आपने अगर वीडियो देखी हो जो EBS की लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी, तो उसमें it would be automatic process. It will always be stored in the S3 bucket. बट ऑफ कोर्स इसकी कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी, बट स्टिल इट्स अ गुड डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशन. Staging area for big data. So if like this is something I also discussed कि आपके पास बिग डेटा है, बहुत सारा डेटा आ रहा है, आपकी मोबाइल डिवाइसेस, IoT डिवाइसेस बहुत सारा डेटा जनरेट कर रहे हैं.
where will you put that data, and it is coming every day. WhatsApp की messages आ रहे हैं, and you want to do an analysis on those messages, तो वो सारा डेटा आप किधर स्टोर करेंगे? तो यू कैन पुट दैट इन S3, और उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस करें, जो रिपोर्ट जनरेट हो उसको आप सिंगल अवेलेबिलिटी जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में आप उसके उनको रख लें रिपोर्ट्स को. So उस तरह, and there are many more application areas where you can use S3. Um, like some scenarios are graphically shown here. Here like backup and storage, इसकी example आप कह सकते हैं. Then application hosting like web hosting, media hosting, software delivery, software different आप वो share करना चाह रही हैं. So you have these S3 buckets. So you can see that okay, lots of data is coming. हमारा जो IoT devices, edge devices, videos, cameras, images, वो हम S3 में store कर रहे हैं. So ये एक stream हो सकती है. We can also think of applications or web applications or mobile applications generating data or creating some resources, and we can put them in the S3 bucket. Cloud storage हम use कर रहे हो. Similarly, web application से भी जा सकते हैं. हमारे corporate data center है, and we have lots of data here, and we want redundant storage because like our server room is vulnerable to earthquakes and floods and crashes and everything. तो आप क्या चाहेंगे? आप कहेंगे बैकअप जो है वो S3 buckets में हो जाए, वो हो सकता है. And then you can also have Amazon S3 based, no sorry, Amazon based application, web applications like Amazon EC2 instances running, और वो EC2 instance जो run हो रहा है वो S3 buckets को use कर रहा हो. So आपकी जो application है, जो आपका solution है, वही सारा ही cloud based है. इधर तो हमने कहा ये cloud based नहीं है, they are just using cloud for storage. बट हियर हमारा सारा सोल्यूशन ही क्लाउड बेस्ड है, जिसमें EC2 इंस्टेंस हमारा रन हो रहा है, वो भी क्लाउड बेस्ड है. तो वो स्टोरेज जो है वो S3 बकेट के अंदर स्टोर कर रहा है. Okay, the last thing about this storage, S3 storage, is again the pricing model, like we discussed for the EBS and EC2. For all the resources, we also discussed about how Amazon charge you for its usage. So obviously, it has important thing is how many gigabytes you are using per month. So इसको charge किया जाएगा. Then how much data you transfer out to other regions या out of one your region, इसको चार्ज किया जाएगा. और तीसरी चीज, how many requests you place for S3 objects, यानी कि आप रिक्वेस्ट कौन कौन सी प्लेस कर रहे हैं, इसको चार्ज किया जाएगा. और किस चीज को चार्ज नहीं किया जाएगा, सो तीन चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है. सो किस चीज को चार्ज नहीं किया जाएगा? इफ you are transferring data into your Amazon S3 buckets, और तो इसको चार्ज नहीं किया जाएगा. So this would not cost you anything. So for example, if I say कि कैमरा जो वीडियो जनरेट कर रहा है और एस बकेट के अंदर स्टोर हो रही है, तो इस डेटा ट्रांसफर की कोई कॉस्ट नहीं है. बट अब इस डेटा को ये EC2 इंस्टेंस यूज कर रहे हैं, अगर तो अगर सेम रीजन में है तो फिर कोई कॉस्ट नहीं है. लेकिन अगर यहाँ पे इस बकेट को आप किसी और रीजन में कॉपी करते हैं, या किसी और ये करंट रीजन से ये अगर ये एग्जिट करेगा डेटा, तो उसके चार्जेस होंगे. तो ये आप बस इसको ध्यान में रखें. ट्रांसफर आउट टू अदर रीजन है, ट्रांसफर इन टू S3 इज नो कॉस्ट. एक और स्पेशल केस जो आपने याद रखना है वो ये है कि ट्रांसफर आउट की हमने बात की कि व्हेनेवर वी ट्रांसफर डेटा आउट ऑफ टू अदर रीजन्स, इट वुड बी चार्ज, राइट. लाइक इफ इट इज 1 GB ऑफ फाइल, अगर आप दूसरे रीजन पे में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इट विल हैव सम कॉस्ट. लेकिन अगर आप क्लाउड फ्रंट यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि अब क्लाउड फ्रंट को आप पे कर रहे हैं. हमने डिस्कस किया था अमेजोन क्लाउड फ्रंट को अगर हम यूज करते हैं, तो क्लाउड फ्रंट क्या था? It was a CDN network. So that means कि I can think of an application where my this instance is like having some video files here. जो कोई movie है, okay. So this is Netflix running here, ठीक है. Amazon के अंदर Netflix रन हो रहा है, और Netflix का डेटा जो है वो इधर पड़ा हुआ है, which are like lots of movies here, buckets में पड़ी हुई हैं. तो अगर आप क्लाउड फ्रंट यूज नहीं करते, तो और ये एंड इमेजिन दैट दिस रीजन इज एशिया, पाकिस्तान है सपोज, एंड देन somebody is here in US,
Um, wait a minute. Let me see if I can draw a little bit. So, for example, we have this US region. US मेरे पास कुछ है नहीं, pointer से मुश्किल है. So we have a US region, और अब इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर यूजर इधर इधर है, बोर्ड पे भी वैसे मैं इतना बुरा ही ड्रॉ करता हूँ, so you can bear with me. सो एक अगर ये यूजर है जो कि इधर से एक्सेस कर रहे हैं, और अगर आप क्लाउड फ्रंट यूज नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स कि आप इन एनी केस यूएस रीजन में भी ये डेटा सेंटर है, एंड दिस इज एडब्ल्यूएस रीजन, राइट? सो दिस इज ऑल्सो ए डब्ल्यू एस. तो ये AWS की दूसरी रीजन है. तो दैट मीन्स कि आपका डेटा यहाँ से, इस रीजन से, जो एशिया रीजन है, यहाँ से जब इधर बाहर आएगा, तो दिस विल चार्ज यू सम मनी. सो दिस विल कॉस्ट यू मनी बिकॉज you are moving your data out of this region. ये अभी हमने डिस्कस किया. But then if you are using CloudFront, that means कि आपका ये डेटा automatically this should go to this region. So यहाँ पे कोई बकेट होनी चाहिए, और इसमें ये ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए. So still, you can see that this is still going from one region to other region because I am using it from here now. CDN हम यूज कर रहे हैं ना, क्लाउड फ्रंट यूज कर रहे हैं, तो ये इसको एक्सेस यहाँ से मिल जाएगी लोकल कैशे से. तो यहाँ पे ऑल्दो रीजन चेंज हुई है, बट दिस विल नॉट बी चार्ज बिकॉज हम इसकी जगह अभी क्लाउड फ्रंट की कॉस्ट बेयर कर रहे हैं. सो द गुड थिंग इज दैट इट विल नॉट चार्ज यू इन दिस केस. So transfer out from Amazon S3 to Amazon CloudFront or Amazon EC2 in the same region will not cost you anything. So अगर सेम रीजन है, उसमें भी कोई कॉस्ट नहीं है, और अगर अदर रीजन में जा रही हैं और क्लाउड फ्रंट लेके जा रहे हैं, तो उसकी भी आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी. ओके. सो if you look at this pricing, इसको दोबारा देखते हैं कि कैसे कर रहा होता है. टू एस्टिमेट S3 स्टोरेज कॉस्ट, कंसिडर द फॉलोइंग. स्टोरेज क्लास टाइप को कॉस्ट किया जाएगा. सो वी सेड दैट उसकी अमाउंट ऑफ स्टोरेज है, बट देन स्टोरेज क्लास टाइप भी मैटर करेगी. सो अगर आप S3 स्टोरेज, स्टैंडर्ड स्टोरेज यूज कर रहे हैं, which is very good, it provides you 11 nines of durability and 4 nines of availability, because it is available all the time. So it will cost you more. And if you are using SC standard infrequent access, which is again availability इसकी ठीक है, like it's 3 nines of availability, वो 4 nines of availability था, ये 3 है, little bit lesser, but still it is good for availability because it is replicated across different availability zones, और durability इसकी भी उतनी ही है, but this is little bit cheaper, तो ये is a good one. But अगर आप थर्ड क्लास में चले जाएंगे, जो कि infrequent access है, and it is which is like not replicated, जो सिंगल जोन infrequent access हमने बात की थी, तो उसमें अवेलेबिलिटी 3 nines ऑफ अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, मे बी अवेलेबिलिटी काफी रिड्यूस हो जाए उसमें. स्टिल इट वुड बी गुड, 99% से ऊपर ही होगी, बट इट वुड नॉट बी दिस गुड, दिस मच गुड. तो क्लास टाइप की बेसिस पे आपको चार्ज किया जाएगा. सो इफ यू आर यूजिंग ग्लेशियर आर्काइव, तो उसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, और इसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी, ये याद रखें आपने. एंड देन अमाउंट ऑफ स्टोरेज, कितनी नंबर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों चीजें मैटर करेंगी. सो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स यू आर स्टोरिंग एंड व्हाट इज देयर साइज, ये बोथ थिंग्स. सो इट्स नॉट ओनली कि आप फॉर एग्जांपल अगर एक फाइल है 1 GB की वर्सेस 10 फाइल्स हैं 1 GB की, so that might charge differently. Number and size of objects matter करेगा. Okay. देन थर्ड थिंग वाज रिक्वेस्ट, जो हमने बात की थी. सो रिक्वेस्ट क्या है कि नंबर एंड टाइप ऑफ रिक्वेस्ट. सो अगेन एवरी रिक्वेस्ट विल हैव डिफरेंट रेट. सो अगर आप गेट रिक्वेस्ट करते हैं, तो दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट आई वांट दिस फाइल, so ये गेट रिक्वेस्ट है. And if you are saying a put request, that means you want to write something on the in the bucket. So get और put request अगर आप करेंगे, तो इनके अपने चार्ज होगा. एंड देन कॉपी रिक्वेस्ट करेंगे, तो इसका ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्यादा रेट होगा, बिकॉज किसी भी कॉपी रिक्वेस्ट में गेट और पुट दोनों आती हैं बाय डिफॉल्ट. बिकॉज व्हेन यू से कॉपी, तो आप क्या कर रहे हैं, एक को उठा रहे हैं, गेट कर रहे हैं, और उसको पुट कर रहे हैं दोबारा, एंड सो गेट एंड पुट आर टुगेदर. सो कॉपी वुड बी लिटिल मोर एक्सपेंसिव. बट जितनी भी रिक्वेस्ट की जाएंगी,
उनकी आपको चार्ज किया जाएगा। सो हर फाइल के ऊपर, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर। एंड अगर ये रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल मैं गेट रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड इट डिपेंड्स कि कितनी अमाउंट ऑफ डेटा उससे मेरे पास आता है। सो इट कुड बी लाइक पूरी मूवी है तो 2 GB का फाइल का डेटा आ रहा होगा। सो दैट इज डेटा ट्रांसफर। कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है आउट ऑफ दैट रीजन, वो हमने जो पहले भी डिस्कस किया था। सो प्राइसिंग is based on the amount of data that is transferred out of S3 region. Data transfer in is free, but you incur charges of data that is transferred out. So ये इसकी ट्रांसफर आउट पे इसको चार्जेस होंगे। तो ये चार चीजें आपने याद रखनी है प्राइसिंग मॉडल में। सो दिस कंप्लीट्स द S3 bucket thing. यू कैन वॉच द डेमो वीडियो, ये आपके साथ शेयर्ड है। इसको जरूर देख लेना है आपने। वीडियो देखने से ये होगा कि आपको यू वुड जस्ट इट वुड मेक सेंस। दूसरा, मैंने आपके साथ आज एक और लैब शेयर की है संडे के लिए। छोटी सी लैब है वैसे, ईबीएस के ऊपर। सो सिमिलरली आई विल ऑल्सो शेयर, क्योंकि अभी हमने ये भी कर लिया तो मैं S3 की लैब जो है वो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। एंड डेडलाइन वुड बी सेम संडे। तो 20 मिनट की वो है, 20 एक मिनट की ये होगी। So that would not be too much work, I hope. EFS आज नहीं कर रहे हम। um, then सर उसकी डेडलाइन सैटरडे है। किसकी, जो मैंने अभी पोस्ट की थी? यस सर। अच्छा, इसकी मैं संडे कर दूंगा, फिर ज्यादा अच्छी बात है। या आप क्या चाहते हैं, जो आप कहेंगे वैसे कर दूंगा। इफ यू वांट मी टू कीप सेम डेडलाइन फॉर बोथ तो दोनों भी कर सकता हूँ। बट S3 की एक असाइनमेंट आएगी अभी। वो लैब वर्क आएगा इसी तरह। सो लेट मी सी। सर बोथ की फिर संडे कर दें। सर बोथ की मंडे कर दें। मंडे तो गलत नहीं हो जाएगा? मंडे वर्किंग डे फिर आ जाता है ना, तो संडे अगर कर दूं तो ठीक नहीं है? आई थिंक संडे इज बेटर। क्या कहते हैं यार, क्लास क्या कहती है? सर संडे को एक और काफी हैवी असाइनमेंट ड्यू है तो मंडे बेस्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, दोनों की मैं मंडे कर दूंगा, सही यस है। थैंक यू। ओके, सो विद दिस यू गेट लास्ट अटेंडेंस। इसको मार्क कर दें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड इफ देयर इज समवन हु आस्क फॉर द लिंक अगेन, तो वो भी मैं दोबारा प्लेस कर देता हूँ।